अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जीएचएमसी इंतखाबात में खवातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। 5 कमेटियां तश्कील देने का भी लिया गया फैसला। तेलंगाना असम्बली के खुसूसी इजलास में जीएचएमसी तरमीमी बिल पेश किया गया। जीएचएमसी तरमीमी बिल की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की तायीद। धरानी पोर्टल के तहत खानदान और जायदाद की तफसीलात हासिल करने वाले वॉलंटियर्स की कारकर्दगी पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने असम्बली में उठाए सवाल। बीसी तबके को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने जीएचएमसी तरमीमी बिल का किया खैर मकदम। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मफलूज, कई ज़खायर आब लबरेज। साइबर क्राइम साइबर पुलिस ने पेटीएम और KYC के तहत धोखाधड़ी में मुलविस रैकेट को किया बेनकाब। 5 अफराद को किया गया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। 13 अक्टूबर मंगल को तेलंगाना असम्बली के खुसूसी इजलास में वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तरमीमी बिल को पेश करते हुए इसके इग़राज़ व मक़ासिद पर तफसीली रोशनी डाली। KTR ने बताया कि GHMC में 50% तहफ़्फ़ुज़ात ख़वातीन के लिए मख़्तस किए जाएंगे, जिसके तहत 150 डिवीजन्स के मंजुमला 75 डिवीजन्स ख़वातीन के लिए मख़्तस की जाएंगी। इसके अलावा 5 कमेटियाँ यूथ कमेटी, महिला कमेटी, सीनियर सिटीज़न कमेटी के अलावा दीगर 2 कमेटियाँ भी तश्कील दी जाएंगी, जबकि शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए 10% बजट भी मख्तस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 429 साला ख़दीम शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए कांग्रेस और तेलुगु देशम ने कोई इक़दामात नहीं किए, तहम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस शहर को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए कई एक इक़दामात कर रहे हैं। ప్రస్థానం ఈరోజు ఒక మహానగరంగా, భవిష్యత్తులో ఒక విశ్వనగరంగా ఎదగడానికి నగరం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ముందుకు పోతా ఉంది. అధ్యక్ష 429 సంవత్సరాల కిందట బీజం పడ్డప్పటికీ ఆనాడు 1869లో హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడింది. అధ్యక్ష 1869లో మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడ్డ తర్వాత 1933లో చాదర్ఘాట్ అనే ఇంకో మున్సిపాలిటీ ఏర్పడింది. 37లో జూబ్లీ హిల్స్ ఒక మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడింది. తర్వాత 1945లో సికింద్రాబాద్ ఒక మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడింది. అంటే ఇవన్నీ కూడా స్వాతంత్రం రాకపూర్వమే హైదరాబాద్ స్టేట్లోనే ఈ 4 పట్టణాలు కూడా మున్సిపాలిటీలుగా ఆనాడు హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీ, చాదర్ఘాట్ మున్సిపాలిటీ, జూబ్లీ హిల్స్ మున్సిపాలిటీ, సికింద్రాబాద్ మున్సిపాలిటీ పేరు మీద 1945 నాటికే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చే పూర్వమే 4 మున్సిపాలిటీగా ఉండేది. అధ్యక్ష తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ స్టేట్ ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా 1948 నుంచి 56 వరకు 8 ఏళ్ల పాటు ఉన్న విషయం మనందరికీ కూడా తెలిసిందే. అధ్యక్ష ఆనాడే హైదరాబాద్ సెపరేట్ స్టేట్గా ఉన్నప్పుడే, ఇంకా యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందే 1955లోనే హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పడింది. అధ్యక్ష హైదరాబాద్ సంస్థానంలోనే, హైదరాబాద్ ప్రత్యేక రాష్ట్రంలోనే ఆనాడు హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 1955లో ఏర్పడింది. ఏర్పడమే ఒక యాక్ట్ కింద, HMC అనే యాక్ట్ కింద, హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అనే యాక్ట్ కింద ఆనాడు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అధ్యక్ష ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడక ముందు ఏదైతే యాక్ట్ మనం తెచ్చుకున్నాం అధ్యక్ష, అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మరి చాలా ప్రభుత్వాలు మారినాయి. అధ్యక్ష అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు 75 సంవత్సరాల్లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి, రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది ప్రముఖులు పరిపాలన చేసినారు. కానీ హైదరాబాద్ని ఒక విశ్వనగరంగా, ఒక సమున్నతమైన స్థాయిలో ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలపాలనే ఆలోచన కానీ, దానికి తగ్గ విధంగా మరి ఒక కొత్త చట్టం తీసుకురావాలన్న ఆలోచన కానీ ఏనాడు చేయలేదు. అధ్యక్ష కానీ మన ప్రభుత్వం ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. అధ్యక్ష దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే కొంత ప్రక్రియ కూడా చేసినాం. అధ్యక్ష కానీ ఈరోజు తెస్తున్న ఈ సవరణలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మరి ఒక ముఖ్యమైన 5 సవరణలు ఈరోజు మనం GHMC యాక్ట్కు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాం. అధ్యక్ష అందులో ప్రధానంగా
అందులో ప్రధానమైనది మొట్టమొదటి అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో 2015వ సంవత్సరంలోనే ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ద్వారా ఒక జీవో ద్వారా ఆనాడు హైదరాబాద్ మహానగరంలో కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు 50% స్థానాలు అంటే 150 స్థానాలు ఉంటే అందులో 50% స్థానాలను మహిళలకే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ద్వారా ఆనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఆమోదించుకున్నాం అధ్యక్ష. ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ద్వారా కాదు చట్టం ద్వారానే సవరణ చేసి చట్టంలోనే పొందుపరిచి భవిష్యత్తులో కూడా మహిళా సాధికారతకు పెద్దపీట వేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ముఖ్యమైన సవరణను కూడా తీసుకొని వస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ చిత్తశుద్ధి కూడా మేము చెప్పాలి అధ్యక్ష. 50% మహిళా రిజర్వేషన్ ఆనాడు చేసినప్పటికీ 75 సీట్లకే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఇంకొక 4 సీట్లు ఎక్కువగా ఇచ్చి 79 స్థానాల్లో మహిళలను గెలిపించిన ఘనత కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి దక్కిందన్నమాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఈరోజు ఇది ఒక అతి ముఖ్యమైన సవరణ. ఎందుకంటే నిన్నగాక మొన్ననే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మన అభిప్రాయం అడిగింది అధ్యక్ష. అన్ని చట్టసభల్లో కూడా అన్ని స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో స్థానిక సంస్థల్లో కూడా 50% రిజర్వేషన్ మహిళలకు చేసినట్టయితే బాగుంటుందా? ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 243T ప్రకారం రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 243 ప్రకారం అట్లీస్ట్ 1/3 ఉండాలని పేర్కొన్నారు అధ్యక్ష. స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో మహిళలకు 3వ వంతు అట్లీస్ట్ ఉండాలని అడిగినారు. కానీ 50% మొట్టమొదటిసారిగా 50% రిజర్వేషన్ను ఇటు పంచాయతీరాజ్ చట్టంలో అటు మున్సిపల్ చట్టంలో ఈరోజు ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందిన తర్వాత జిహెచ్ఎంసీ చట్టంలో కూడా ఏర్పాటు చేసిన మొట్టమొదటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొత్తం భారతదేశంలోనే ఈ విషయంలో మహిళా సాధికారత విషయంలో ముందు ఉన్నదని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా గౌరవ సభ్యులకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇది మొదటి సవరణ. రెండవది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో నిన్నగాక మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఒక నివేదిక విడుదల చేసింది అధ్యక్ష. అక్కడి मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने असम्बली के खुसूसी इजलास में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी बिल मुबाहस में हिस्सा लेते हुए बताया कि मजलिस इस बिल की तायीद करती है और ख़वातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात देने का खैर मकदम करते हुए अहमद बलाला ने इस बात का मुतालबा किया कि LRS स्कीम की बजाय BRS स्कीम पर अमल करते हुए गरीब आवाम को राहत पहुँचाई जाए। उन्होंने LRS स्कीम को लेकर अहदेदारों की जानिब से आधार कार्ड तलब करने और तमाम अफराद ख़ानदान की तफसीलात हासिल करने और किस ज़राए से अराज़ियात और मकानात हासिल हुए हैं उसकी तफसीलात हासिल करने पर एतराज़ करते हुए इसे रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने हालिया बारिश की वजह से आवाम को होने वाली मुश्किलात को भी असम्बली में पेश किया। Discussion on the bill. Ahmad bin Abdullah Balala. स्पीकर साहब, मैं मेरी पार्टी की जानिब से जो म्यूनसिपल अमेंडमेंट के अंदर 4 अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं उस अमेंडमेंट्स का खैर मकदम करता हूं। हमारी पार्टी इस अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करती है और साथ ही साथ जो ख़ास तौर के ऊपर मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूँगा कि जो आप एक कारपोरेटर डिवीज़न के अंदर 4 हिस्सों में उसको तकसीम कर 4 वार्ड मेंबर्स, वार्ड कमेटीज़ उसको बना रहे हैं, उसके अंदर उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी आप दिए हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप दिए हैं कि आप 80% ऑफ ग्रीनरी मेंटेन करना, जितने भी प्लांटेशन, स्ट्रीट लाइट्स मेंटेन करना, यहाँ तक के इलीगल कंस्ट्रक्शंस को भी वो लोग फॉलो अप करना। मैं अब आने वाले इंतखाबात है और ये बिल है जिसमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन जो गुज़िश्ता में जियो के ज़रिए किया गया था, अब आप इसको बिल लेकर आकर 50% ख़वातीन को इसके अंदर रिजर्वेशन दे रहे हैं। हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि मिनिस्टर साहब, हम कारपोरेटर्स और MLAs के टॉर्चर से तंग आ चुके हैं। आम आवाम, आपको जरूरी है कि एक बार आप BRS की स्कीम लेकर आइए, आप BRS की स्कीम लेकर आइए, आप BRS की स्कीम लेकर आइए, ताकि वन टाइम इसका इशू, इसका ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस और डिविएशंस का जो हाल है वो उसको एक सही रास्ता दिखा सके। आज जो भी लोग डिविएशन कर रहे हैं वो बल्दिया के हमले से ज्यादा कारपोरेटर्स और MLAs से तंग आ चुके हैं। वो लोग ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक बार BRS स्कीम लेकर आकर इसको रेगुलराइज कराइए,
ताकि जितने भी बिल्डिंग्स जो बन रहे हैं वो आवाम जो बना रही है, जो लोग गरीब लोग जो बना लिए हैं उनको राहत मिले, आपके बिल्डिंग्स भी आपका स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। तो मैं आपके ज़रिए इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि आप एक फाइनल BRS स्कीम लेकर आइए ताकि आवाम को इसका फ़ायदा हो सके। और इसके अलावा जो भी आपने कहा है, जो अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, इसका हम खैर मकदम करते हैं। अगर आप इसको क़ब्ल वक्त ये अमेंडमेंट्स अगर से देते तो इससे और ज़्यादा हम इसके अंदर बात कर सकते थे। बहरहाल हम आपके इस अमेंडमेंट्स का खैर मकदम करते हैं। तेलंगाना असम्बली के खुसूसी इजलास में वज़ीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी की पेश करदा इंडियन स्टैम्प तेलंगाना बिल मुबाहिस में मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने हिस्सा लेते हुए बिल की मजलिस की जानिब से तायीद की और हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर मकानात और अराजियात की रजिस्ट्री का दोबारा आगाज़ करने के सिलसिले में तारीख़ का ऐलान किया जाए। वज़ीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी ने मजलिसी रुकन असम्बली को तयख़ुन दिया कि धरानी पोर्टल रिकॉर्ड जमा करने की तारीख 20 अक्टूबर मुकर्रर है, उसके बाद रजिस्ट्री के आगाज़ की तारीख का ऐलान किया जाएगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज जो इंडियन स्टैम्प्स एक्ट 1899 का जो अमेंडमेंट बिल आया है मेरी पार्टी की जानिब से, हम इस बिल की तायीद करते हैं साहब। और इस बिल के अंदर जो भी चीज़ बताए हैं सही है। इसमें एक चीज़ मुझे क्लैरिफिकेशन ये पूछना है सर कि इसमें आपने कहा कि फुल स्टैम्प ड्यूटी भर देना, बिल्कुल भरेंगे सर। फ़र्ज़ करिए फॉर एग्जांपल आपकी जो मार्केट वैल्यू है, अगर आपकी 10 लाख रुपीज़ वो प्रॉपर्टी की आ रही है, कोई पार्टी अगर फ़र्ज़ करिए वो 6 to 8 लाख में बेचना चाहती है, हम स्टैम्प ड्यूटी तो सर हम पूरी भरेंगे। क्या हम वो प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी लिख सकते, क्या उसके अंदर वो एक्सेप्ट होता, क्या वो एक। और दूसरा अहम सवाल ये है सर कि मैं मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ और एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, आप ये रजिस्ट्रेशन कब खोलने वाले हैं सर, उसको बोलिए। चूँकि लॉकडाउन के अंदर लोग परेशान थे सर, आज रजिस्ट्रेशन बंद होने की तरफ से काफ़ी लोग, कुछ लोग शादी के लिए, कुछ और के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचे थे सर, वो प्रॉपर्टी की अगर रजिस्ट्री होंगी तो उनको पैसे आएंगे। तो मेरी आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से दरखास्त है कि उसकी भी डेट अगर आप अनाउंस कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया और हम इस बिल की तायीद करते हैं सर। मिनिस्टर रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने कहा है कि आज पुराने शहर के ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों के सिलसिले में भी असम्बली में तवज्जो दिलाई गई। रुकन असम्बली ने बताया कि नलगुंडा क्रॉस रोड से अवैसी जंक्शन तक, आराम घर से जू पार्क तक के पुल की तामीर का भी वादा किया गया था, इसका काम भी शुरू नहीं हुआ है और ऐसे कई दीगर काम हैं जो ज़ेर इल्तिवा हैं। शास्त्रीपुरम पुराना पुल, फ्लाईओवर और जंक्शन इम्प्रूवमेंट के अलावा नालों के काम भी रुके हुए हैं। इस सिलसिले में भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई गई, जिस पर मुताल्लिक़ा वज़ीर ने इन कामों के आगाज़ का तयख़ुन दिया है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर ने इस सिलसिले में जल्द एक इजलास बुलाने का भी तयख़ुन दिया। असेंबली में, तेलंगाना असेंबली के अंदर आज जो पुराने शहर के अंदर जो तरक्याती कामें जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग हैं, जिसके अंदर परसों जो लॉकडाउन के बाद फौरी बाद जो इनाग्रेशन यहाँ पर नलगुंडा से लेकर अवेसी जंक्शन तक जो स्टील ब्रिज आने का है, उसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। और उसके साथ ही साथ से जू पार्क तक का जो ब्रिज है उसका भी काम अब तक नहीं हुआ, जिसका वादा 2018 के अंदर 18 मार्च 2020 को, जिसके लिए म्यूनसिपल मिनिस्टर ने KTR साहब ने मीटिंग ली थी और ये काम का इंस्पेक्शन काफ़ी अरसे ज़माने से ये काम पेंडिंग्स है। ऐसे कई काम हैं जो जंक्शन इम्प्रूवमेंट्स के काम है पुराने शहर के अंदर, और अपने शास्त्रीपुरम के अंदर का काम है, पुराना पुल फ्लाईओवर का काम है। सिर्फ एक काम रेडी होकर है जो है उपगुड़ा RUB का जो रेडी है इनाग्रेशन के लिए। फलकनुमा RUB अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जंक्शन इम्प्रूवमेंट्स के काम हैं और नालाज के काम हैं। कई काम हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो कामों के ताल्लुक़ से हमने आज असेंबली में आवाज़ उठाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। तो मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि वो जल्द से जल्द ये कामों की तकमील के लिए मीटिंग बुलाकर ये काम शुरू करवाएंगे। ये कामों के लिए क़रीब 400 करोड़ से ज़्यादा की
ज़रूरत है, तो हमने यही मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द आप मीटिंग बुलाइए और ये काम जो अरसे दराज से जो पेंडिंग है वो कामों को मुकम्मल करवाइए, जिसके ऊपर उन्होंने तयख़ुन दिया है कि वो जल्दी मीटिंग बुलाएंगे और ये कामों की यकसुई करेंगे। म्यूनसिपल एक्ट अमेंडमेंट के अंदर हमने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि जो अब घरे घर फिर कर जिसके ज़ाती मकानात है उनका डेटा कलेक्ट कर कर धरनी पोर्टल के ऊपर अपलोड किया जा रहा है, उसके अंदर हमने हुकूमत से ये सवाल किए हैं कि इसका सफाई मांगी है हुकूमत से कि आप इसके अंदर तमाम अफराद ख़ानदान का क्यों ले रहे हैं नाम। दूसरा ये कि जायदाद का मालिक जो भी है उससे आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि वो जायदाद का मालिक है, आप उसको अपलोड करिए। आप उसके अंदर ये क्यों पूछ रहे हैं कि जायदाद तुम्हारे पास कहाँ से आई है और अब सोर्स क्या है जायदाद आने का, और आप साथ ही साथ आप आधार कार्ड नंबर भी आप पूछ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह तौर पर रूलिंग है कि आधार कार्ड नंबर सिर्फ हुकूमत उस जगह पर पूछ सकती है जहाँ पर हुकूमत जो है सो आवाम को जिसकी बेनिफिट दे रही है, जैसा 2 डबल बेडरूम हाउसेस है या पेंशन है या कोई और गवर्नमेंट स्कीम है। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जो आवाम को इस्तेफादा दे रही है उसमें आधार कार्ड नंबर लेने का हुकूमत ले सकती है। उससे हट के इसमें हुकूमत क्या आवाम को फ़ायदा पहुंचा रही है जो इसके अंदर आधार कार्ड नंबर ले रही है, ना सिर्फ जायदाद के ओनर का ले रही है बल्कि उनके पूरे अफराद ख़ानदान का आधार कार्ड नंबर ले रही है। तो हमने इसमें भी वजाहत तलब की है कि क्यों ये ले रहे हैं। और आज तक कई लोग अब आप इसका धरने का जो है सो आप एक टाइम फ्रेम भी फिक्स कर रहे हैं कि इसके अंदर फ़लाने टाइम तक जो है सो सब लोग पोर्टल के अंदर अपलोड कर देना। हैदराबाद के अंदर और बिलखुसूस पुराने शहर के अंदर और बिलखुसूस हमारी कौम के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो बाहर हैं जिनके जायदादों के डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीज़ें यहाँ पर लॉकर्स के अंदर है। तो वो लोग के लिए क्या आप कर रहे हैं कि वो लोग कब आकर जो है सो इसको अपलोड करना है। और नोटराइज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कई प्रॉपर्टी हैं गरीब लोगों के, हिबा के ऊपर ख़ानदानी जायदादें हैं जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन हिबा के ज़रिए किसी बेटे को, किसी की बेटी को या किसी के ज़रिए उनको मिली हुई है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से अपलोड करेंगे आप, उसको कैसे यकसुई करेंगे, नोटरी डॉक्यूमेंट्स का क्या करेंगे, अब तक वजाहत नहीं की गई है। तो मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर भी वजाहत की है कि मजलिस के तमाम मुतालबात के लिए मीटिंग कर कर इसकी तमाम वजाहत करेंगे और इसकी यकसुई। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने ऐवान में ज़रई और गैर ज़रई अराजियात तरमीमी बिल मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इस बात की वजाहत चाही कि क्या औखाफ़ी और इंडोमेंट अराजियात को भी बाकायदा बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। अगर ऐसा किया जा रहा है तो मजलिस इसकी मुखालिफत करेगी, जिस पर वज़ीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखराव ने मानसून असम्बली इजलास में इस बात का ऐलान किया है कि औखाफ़ी अराजियात पर किसी भी तरह की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी और इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। जनाब स्पीकर साहब, आपने मुझे इस बिल पे बात करने का जो मौका दिया है, एग्रीकल्चर अमेंडमेंट ऑफ तेलंगाना एग्रीकल्चरल लैंड इनटू नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए मैं मेरी पार्टी के जानिब से इस बिल की तायद करता हूं साहब। 2-3 छोटे मोटे क्लेरिफिकेशन है। एक तो ये है कि नॉन एग्रीकल्चर के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उसको कितने टाइम में आप इसको करके देंगे, क्योंकि मेन ये है जो अपन क़ानून यहाँ पे बनाते सर मगर प्रैक्टिकल जाने के बाद कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ से डिले करते हैं। एक मुझे वो पूछना है सर। इसके अलावा जैसा अब जो एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर धरनी पोर्टल के अंदर आपने जो न्यू फ्रेश पासबुक इशू करेंगे सर, इससे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद ई पासबुक आपने दिया था, वो ई पासबुक का क्या रहेगा वो भी आपको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में वो ई पासबुक भी साथ के साथ कैरी करना क्या, वो एक चीज हमको पूछना है सर। इसके अलावा साहब और एक चीज मुझे ये भी पूछना है कि ई पासबुक के साथ साथ अभी जैसा काफी डिस्ट्रिक्टों के अंदर इंडोनमेंट लैंड और वक्फ लैंड के ऊपर भी एग्रीकल्चर के लिए पासबुक इशू कर दिए गए हैं, वैसों को क्या आप फिर इसके लिए इसमें पासबुक देंगे क्या? उसको हरगिज नहीं देना चाहिए सर, क्योंकि वो ऑलरेडी वक्फ लैंड और एंडोनमेंट लैंड है सर। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है सर, लास्ट टाइम सीएम साहब ने कहा था कि जो लोग टेनेंसी कब्जा कॉलम के अंदर है
वो कोई कब्जेदार नहीं रहेगा, सिर्फ पट्टेदार का ही नाम आएगा। तो क्या ये जो आप कानून लेके आ रहे हैं इसके अंदर कब्जेदार का नाम नहीं रहेगा ना सर? उसको भी क्लियर करना बेइंतहा जरूरी है, वरना कब्जेदार की तरफ से केसेस हो रहे हैं सर, ओरिजिनल पट्टेदार परेशान हाल है सर। हम इस बिल की मुकम्मल तायद करते हैं सर, और उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द इसको इंट्रोड्यूस करके खत्म करेंगे सर। థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష, ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క 2006 మూడవ చట్టం సవరణ బిల్లును సమర్థిస్తూ స్వాగతిస్తూ మరి ఈరోజు ఈ యొక్క బిల్ మీద మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ బిల్లు యొక్క మొదట ఈ యొక్క నాలా అనేది నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అసెస్మెంట్ అనేది 1963లో జరిగినటువంటి సందర్భం అధ్యక్ష. 1963లో ఆనాడు ఉన్నటువంటిది మామూలుగా రేటు, ప్రభుత్వం రేటు ప్రకారంగా 50 పైసలు 1 రూపీ కట్టుకునే పరిస్థితిలో ఆనాడు ఉన్నటువంటిది. 2006లో ఈ యొక్క గత ప్రభుత్వాలు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో 10%, మరి కొన్ని రోజుల తర్వాత 9% ట్యాక్స్ వేసినటువంటి సందర్భాలు. ఆ తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత 2016లో దీన్ని 3%గా చేసినటువంటి ఘనత. तेलंगाना असेंबली के खुसूसी इजलास में स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने जीएचएमसी तरमीमी एक्ट 1955 तरमीमी बिल और इंडियन स्टैम्प ड्यूटी तेलंगाना बिल, ज़रई और गैर ज़रई तरमीमी बिल, नाला तरमीमी बिल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी देते हुए ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया. सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने असम्बली में जीएचएमसी तरमीमी बिल मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए ख़वातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात देने का खैर मक़दम करते हुए बीसी तबक़े को आबादी के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने का मुतालबा किया. भट्टी विक्रमार्का ने हालिया बारिश में कमसिन लड़की और एक शख्स की मौत पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि नाक़िस ड्रेनेज निज़ाम की वजह से ये वाक़यात रोनुमा हुए हैं. इसके अलावा उस्मानिया दवाखाने में भी ड्रेन का पानी दाखिल होने की इतलात मिली है. उन्होंने अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन बिछाने का मुतालबा किया. సోమయ్యకి ఇంకో 5 ఎకరాలు ఉంది, కానీ రామయ్య అనే ముందు పోయి 7 ఎకరాలు ఎంట్రీ చేసుకున్నాడు. సోమయ్య పోయి తన 5 ఎకరాల కోసం వాళ్ళు ఎంట్రీ చేయవాలంటే ఆ ధరణి పోర్టల్లో ఆ సర్వే నెంబర్లో 10 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ ఎంట్రీ చేసుకోవడానికి అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఆల్రెడీ 7 ఎకరాలు ఎంట్రీ అయిపోయింది కాబట్టి నీకు సంబంధించిన 5 ఎకరాలు దీంట్లో ఎంట్రీ కాదు, కేవలం 3 ఎకరాలు మాత్రమే ఎంట్రీ అవుతుంది, నీ 2 ఎకరాలు దీంట్లో ఎంటర్ కాదని చెప్పి వాటిని పెండింగ్ పెట్టి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇటువంటి కేసులు కొన్ని వేలు ఉన్నాయి. ముందు వాటిని సరి చేయకుండా, రెక్టిఫై చేయకుండా మీరు అదే ధరణిలో ఎంటర్ అయినటువంటి భూములే తప్పులు తడకగా ఎంటర్ అయినవి. ఆ ఎంటర్ అయిన దాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని బేస్గా తీసుకొని ఎవరైనా తన భూమి అగ్రికల్చర్ భూమిని మళ్ళీ నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్గా కన్వర్షన్ చేసుకోవడం కోసం దాంట్లో అప్లై చేస్తే ఎంఆర్ఓ అప్పటికప్పుడే దాంట్లో ఎంటర్ అయిన దాన్నే బేస్ చేసుకొని కన్వర్ట్ చేసి తనకి నాన్ అగ్రికల్చర్ భూమి హక్కు పత్రాన్ని ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. అప్పటికే ఒక తప్పు ధరణి పోర్టల్లో జరిగింది. దాన్ని రెక్టిఫై చేయకుండా రెండో తప్పు చేయడానికి ఈ నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్గా కన్వర్షన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తే ఇది భవిష్యత్తులో శాశ్వతంగా అసలు హక్కుదారుడు తను ఎంట్రీ చేసుకోవడానికి, రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా, స్కోప్ లేకుండా
बीजेपी और एबीवीपी के कारकुनों और कायदीन की जानिब से जीएचएमसी बिल की मुखालिफत और डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों का मुतालबा करते हुए असम्बली के घेराव की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया और एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बीजेपी और एबीवीपी के कारकुन वक्फे से ग्रुप की शक्ल में असम्बली के बाबुल दाखिले के करीब पहुँचते रहे और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। साबिक़ रुकन असम्बली रामचंद्र राव रेड्डी ने जीएचएमसी बिल को मजलिस के इशारे पर पेश करने का हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी और इंचार्ज रियासत एम टैगोर की क़यादत में पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें आने वाले ग्रेजुएट हल्के के एमएलसी इंतखाबात, जीएचएमसी इंतखाबात और दुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को खतियत देने के अलावा एमएलसी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कायदीन से कहा कि वो अवामी मसाइल को लेकर अपनी जद्दोजहद जारी रखें। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जहां तेलंगाना के 14 से ज़ायद अजला बारिश से मुतासिर हुए, जिसके बाद मज़कूरा 14 अजला को अलर्ट किया गया है। तेलंगाना के बाज़ इलाक़ों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट, जनगांव, भोपालापल्ली, करीमनगर, वरंगल, अर्बन, रूरल, महबूबाबाद, भद्रादरी, कुत्तागुड़म, नलगुंडा, भोनगिर, सूर्यापेट और मलगू अजला में शदीद बारिश हो रही है। अजीम तरबल्दी हैदराबाद में पीर को सुबह 8:30 बजे से शाम 7 बजे तक 59.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मुशीराबाद में 53, तिरमलगिरी में 47, नामपल्ली और खैरताबाद में 29 जबकि दीगर इलाकों में 30 से 35 मिलीमीटर के दरमियान बारिश रिकॉर्ड की गई। आवाम को बारिश की वजह से चौकस रहने की भी हिदायत दी गई है, क्योंकि खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी का दायरा गहरा हो रहा है और चहारशबे तक ये और भी गहरा हो सकता है। इसलिए आइंदा 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। हैदराबाद में बल्दिया की टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है और आवाम से अपील भी की गई है कि वो बारिश के दौरान गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। मोमरीन और कमसिन बच्चों को बारिश के जमा पानी में जाने से गुरेज करने का भी मशवरा दिया गया है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने बताया कि शदीद दबाव का दायरा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के साहिली इलाके को अबूर कर गया है। इस दौरान वहाँ 55 से 65 किलोमीटर के दरमियान हवाएं चली हैं और पूरे साहिली आंध्रा के इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। हैदराबाद के तारीखी ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। हिमायत सागर की सतह आब मुकम्मल होने के लिए अब सिर्फ 1 फीट से भी कम का पानी दरकार है और इत्तला मिली है कि किसी भी वक्त हिमायत सागर के दरवाजे खोले जा सकते हैं। आज सुबह मिली इत्तला के मुताबिक हिमायत सागर की जुमला सतह आब 1763.50 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1762.138 फीट हो गई है। बताया गया है कि मूसा नदी से लगे नशेबी इलाक़ों की आवाम को चौकस कर दिया गया है और पुराने पुल से लेकर चादर घाट, खदीम मलकपेट के इलाक़ों तक आवाम को आगाह कर दिया गया है कि वो मोहतात रहें। चादर घाट के इलाके कमल नगर, मूसा नगर, शंकर नगर और दीगर इलाक़ों में भी चौकसी इख्तियार की जा रही है और आवाम को भी मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। दूसरी जानिब उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790.0 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1773.588% बताई गई है।
शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में भी पानी का गैर मामूली इनफ्लो देखा गया है और अब मुकम्मल सतह के लिए भी चंद इंच बाकी रह गए हैं। मुकम्मल सतह 513 फीट बताई गई है और टैंक बॉन्ड के आसपास की आवाम को भी चौकस कर दिया गया है। नाचारम के इलाके में बारिश के बायस कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नाचारम के मल्लापुर इलाके में वाक़ कॉलोनीज़ में शदीद बारिश के बायस मकानात में भी पानी दाखिल हो गया और मुकामी आवाम को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता 2 दिन से जारी बारिश के नतीजे में धूलपेट रानी अवंतीबाई भवन के करीब एक मकान को नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा मकान से मुत्तसिल एक पहाड़ का पत्थर मकान पर गिर पड़ा, जिसके बायस मकान की दीवार और मकान को नुकसान पहुंचा। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह है कि मुसलसल जारी बारिश के बायस हुकूमत की जानिब से एहतियात बरतने की हिदायत जारी की गई है। 2 नंबर जो है ना 13-1-498 सुबह में बारिश के वजह से सब घर जो है ना ठीक था। 10 बजे का टाइम ऊपर से जो है ना 4 पहाड़ जो है, ये एक बड़ा 3 छोटे आके गिरे। मेरा जो है ना चिकन पूरा डैमेज हो गया, पूजा रूम डैमेज हो गया। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट सरकार से अपील कर रहे हैं कि इधर के जो भी बस्ती के हैं कि पहाड़ा गिरते रहते, इसका कुछ जो है ना इंतज़ाम करो और जो डैमेज हुआ उसका गवर्नमेंट से जो है ना अपील कर रहे हैं कि कुछ मदद करो जो है ना, और आगे ये नहीं होना वही बोलकर कुछ जो है ना पहाड़ों की फेंसिंग किया जाए ताकि जो है ना सुरक्षित रहे। आगे का डर सता रहा है हमको बोल के नहीं, आजू बाजू के पूरे जो है ना लोग। ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा? ये फर्स्ट टाइम हुआ। 39 साल हो रहे ये मकान लेके, 81 में लिए थे साहब। ये एरिया का नाम क्या है? दिलावरगंज दूध खाना मंगलहाट। यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं आप? 39 39 साल से यहाँ पर रह रहे। ये फर्स्ट टाइम हुआ आपके ये साथ? फर्स्ट टाइम हुआ सर। तो अभी आपका डिमांड क्या है? डिमांड कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जो भी है ये जो है ना पहाड़ों का तेलंगाना गवर्नमेंट से नहीं गिरे जैसा हमारे को कोई फेंसिंग या कुछ बना के दे दिए जाए। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के केसेस में पीर के मुकाबले में फिर एक बार इजाफा हुआ। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1708 नए केसेस और 5 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1233 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,14,792 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,89,351 बताई गई है। आज सुबह 2009 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 24,208 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 277 नए केसेस सामने आए। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि बोर्ड का खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें 101 एजेंडे शामिल थे और इस इजलास में कई एक अहम फैसले लिए गए, जिनमें काबिल ज़िक्र 3 जायदादों को लीज़ पर देने का फ़ैसला भी शामिल है ताकि आमदनी में इजाफा हो सके। इसके अलावा शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के शेड, बैतुल ख़ला व दीगर तरक्याती कामों के लिए 1 करोड़ रुपये मंजूर करते हुए तामीराती काम के आगाज़ से मुताल्लिक़ भी बोर्ड के इजलास में फ़ैसला लिया गया। बाद-अज़ा वक्फ बोर्ड सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने बोर्ड के खुसूसी इजलास में लिए गए अहम फ़ैसलों से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। साहब को साथ देके केसीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग पूरी प्रॉपर्टी सेव करेंगे। इसको सेव करने के बाद ओपन ऑक्शन करके लीज देते रहेंगे। उसकी लीज की इनकम आने से जो है ना पूर पीपल को, गरीब आवाम के लिए जो है ना खिदमत कर सकते हैं। गरीब आवाम को जो है ना जो लोग वफ़ करके गए, मंशा वफ़ के हिसाब से अगर सही यूटिलाइज करें तो कोई भी गरीब नहीं रहता। इंशाल्लाह हर कोई जो है ना सुकून में आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज तक वफ़ की इनकम जो है ना जनरेट करने को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर कई लैंड ग्राबर्स, कई लैंड माफिया, ये लोग जो है ना ज़मीनों पे कब्जे करके डॉक्यूमेंट चेंज करा के जो है ना वफ़ प्रॉपर्टी के गजीटों को गायब करा के ये लोग जो है ना अपने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कर लिए, मगर उसको भी हम लोग कैंसिल कराएंगे।
गवर्नमेंट ओपन बोली केसीआर साहब, और हम लोग जो है ना रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी हम लोग पूरे रजिस्ट्रेशन ऑफिसों में भी लेटर दे चुके हैं, वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। हाल भी हाफ का है बोल के मालूम है शाली मंडे उसकी गजिट निकाल रहे हैं, गजिट में तो गजिट नहीं है हमारे पास, वो गजिट निकालेंगे, अगर है तो बोलेंगे। अभी तो हमारे को उसका नहीं मिला, अभी या गजिट में तो नहीं निकला होगी। अच्छा, वो चार जो कंस्ट्रक्शन का ये उसको परमिशन दिया, सो उसके नाम आप तो बोल दीजिए। गिरेबियाट के अलग अलग है, वो इमाम जामीन का एक है, फिर और यहाँ का भी है ना, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में है, तो 6 जगह दिए हैं हम लोग परमिशन। सर कमेटी का क्या रोल रहेगा? हम लोग पूरे कलेक्टर ऑफिसों में, आरडीओ को, उसको, और जीएचएमसी जहाँ भी म्यूनसिपालिटी है वहाँ पर, रजिस्ट्रेशन ऑफिसों में हम लोग ये पूरा तकसीम करे हैं, और जहाँ जहाँ नहीं मिली वहाँ पर भी जो है काम जारी है। इंशाल्लाह वक्फ प्रॉपर्टी पहले इजी गोइंग समझते थे, लावारिस समझते थे लोग, पर वक्फ प्रॉपर्टी जो है ना केसीआर साहब आने के बाद गवर्नमेंट की सपोर्ट, पुलिस की सपोर्ट और आरडीओ कलेक्टर की, ये लोगों की सपोर्ट से जो है ना अभी हमारी प्रॉपर्टी हमको जो लोग बेच लिए वो भी हमको रिटर्न आने की पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसमें सीरियस है। गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड दोनों मिलके, वक्फ बोर्ड भी एक गवर्नमेंट है, तो केसीआर साहब। मुसलसिल बारिश के बायस ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के शंकर नगर में मकान की दीवार गिरने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी ने मज़कूरा मकान का मुआयना किया और उनके हमरा जीएचएमसी महकमे के अहदेदार भी मौजूद थे। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी ने महकमे के अहदेदारों को मुतासरा मकान का मुआयना करने के बाद अहदेदारों से मुतालबा किया कि मुतासरा मकान मालिक को माली ताउन किया जाए। साइबर क्राइम साइबर पुलिस ने केवाईसी और पेटीएम के तहत रकम की धोखाधड़ी में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िमीन के कब्ज़े से 1,47,000 नकद रकम के अलावा 6 मोबाइल फ़ोन्स, 2 आधार कार्ड, 3 डेबिट कार्ड व दीगर अशिया जब्त कर ली गई। साइबर क्राइम पुलिस ने मियाँपुर के साकिन की शिकायत पर कार्रवाई की, जिसमें मुलज़िम ने केवाईसी और पेटीएम की अपडेटिंग के लिए मैसेजेस किए और इसी तरह मासूम लोगों को अलग अलग नंबर से कॉल करते हुए मुलज़िमीन ने लाखों रुपये की धोखाधड़ी की। कमिश्नर साइबराबाद ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। మొత్తం ఈ ఒక ఆపరేషన్ మన డీసీపీ రోహిణి నేతృత్వంలో డీసీపీ క్రైమ్స్ అసిస్టెడ్ బై అడిషనల్ డీసీపీ కవిత, మన ఏసీపీ శ్యామ్ బాబు, అదేవిధంగా మన ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాసు, మల్లికార్జున్ ఎస్ఐ, సిద్ధేశ్వర ఏఎస్ఐ, వెంకటరెడ్డి ఏఎస్ఐ, నందు యాదవ్, శివకుమార్, రాజా రమేష్ కానిస్టేబుల్స్, శేఖర్, నరేష్ కానిస్టేబుల్స్, రషద్ అండ్ ఎం సాయి కిరణ్ రెడ్డి అండ్ కవిత ఉమన్ పీసీ, వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఈ గ్యాంగ్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా अफजल सागर में वाक़ क़दीम इमारत के कुछ हिस्से मुसलसिल बारिश के नतीजे में गिर गए, जिसकी वजह से इमारत में मुक़ीम लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही महकमे जीएचएमसी के अहदेदारों ने मुक़ामी वाक़े का मुआयना किया, जबकि मुक़ामी अवाम ने मुतालबा किया कि महकमे की जानिब से इस इमारत को मुनहदिम करते हुए मुक़ामी मकीनों को सहूलियात फ़राहम की जाए। जीएचएमसी अहदेदारों ने तफसीली मुआयना और मुक़ामी अवाम के मसले की समाअत के बाद तयख़ुन दिया कि जल्द ही इस सिलसिले में फ़ैसला लिया जाएगा। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मस्कुरा इमारत का मुआयना किया और बताया कि मस्कुरा इमारत में तकरीबन 13 ख़ानदान मुक़ीम हैं, जिन्हें मुसलसिल बारिश की वजह से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। గవర్నమెంట్ ఏమీ అందరు రాసుకోపోతారు, అన్ని చేస్తారు, బియ్యాలు వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ పోయినాయి, లాస్ అయినాయి మొత్తం. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇప్పుడు ఇట్లా అనుకున్నాడైనా నేను కొంచెం లేపినందుకు పక్కన జరిగింది, లేకపోతే అట్లనే అనుకుంటే ఎవరికైనా దెబ్బ తగిలింది. ముందు ఆటో వచ్చి నేను పీపుల్ బల్ వేసుకుని అనుకున్నాడు, అనుకుంటే జర లేపిన అక్కడ కూర్చుని కొంచెం ధర్మని వాడేది. ఇక మన ఇక్కడ పక్కన తగిలింది, దెబ్బ తగిలింది, కాలుకు దెబ్బ తగిలింది, మీరు ఎప్పటి నుంచి ఉంటారు ఇక్కడ? 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 10 సంవత్సరాలు.
सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के अहाते में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत शजरकारी अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में रुकने पार्लिमान जे संतोष कुमार, फिल्म प्रोड्यूसर सी कल्याण, फिल्म डायरेक्टर वी विनायक और कमिश्नर सैबराबाद वीसी सजनार ने पौधे लगाते हुए ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा अतिया देने वालों के लिए गीतकार महेश शर्मा ने गीत भी रिलीज किया। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज मिर्ज़ा अहमद बेग ने आज हसन नगर, महमूद नगर के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का दौरा करते हुए मुकामी अवाम को दरपेश पीने के पानी के मसले का जायज़ा लिया। मज़कूरा इलाक़े में मुकामी अवाम को पीने के पानी की सरबराही और आलूदा पानी की शिकायत थी, जिसके बाद मिर्ज़ा अहमद बेग और नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद ने दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुकामी सरगर्म मजलिसी कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में सैनिटाइजेशन, पेशेंट्स केयर और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के अलावा सिक्योरिटी अमले ने एहतजाज करते हुए उनकी तनख्वाहों की इजराई का मुतालबा किया। एहतजाजियों के मुताबिक मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर गुज़िश्ता 2 माह से उनकी तनख्वाहें अदा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो माली मुश्किलात से दो चार हैं। एहतजाजियों ने इंतबा दिया कि अगर उनकी तनख्वाहें जल्द अदा नहीं की गई तो एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। विशाखापट्टनम के गन्नावरम में एक कार बारिश के पानी में बह गई, जिसकी वजह से एक शख्स हलाक हो गया जबकि 3 अफराद को बचा लिया गया। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में शदीद बारिश हो रही है, जबकि कार में सवार खवातीन को मुकामी अवाम और रेस्क्यू टीमों की तरफ से बचा लिया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शदीद बारिश के बाद दरख्तों के गिरने और बाज़ मुकामात पर ज़मीन खिसकने के भी वाक़यात पेश आए, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया और आंध्र प्रदेश के दीगर कई अजला में भी शदीद बारिश हो रही है। कुंदुपुर आरडीओ CH रविंदर रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के बुरहान खान तालाब का दौरा किया। MRO बालापुर श्रीनिवास रेड्डी, कमिश्नर जी प्रवीण और सदरनशीन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के साथ दौरा करते हुए उन्होंने आवाम से अपील की कि वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले और अगर किसी को कोई तकलीफ़ या शिकायत हो तो फ़ोन नंबर 7660801234 पर इत्तला दी जाए। 54 साला मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साकिन छावनी याकुतपुरा 11 अक्टूबर से लापता बताए गए हैं। इस सिलसिले में उनकी अहलिया ने रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन अगर किसी को नज़र आ जाएं तो फ़ोन नंबरात पर इत्तला देने की गुजारिश की गई है। फ़ोन नंबर हैं 9490616268 या फिर 8247436548 पर भी इत्तला दी जा सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। GHMC इंतखाबात में खवातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। 5 कमेटियां तश्कील देने का भी लिया गया फैसला। तेलंगाना असम्बली के खुसूसी इजलास में GHMC तरमीमी बिल पेश किया गया। GHMC तरमीमी बिल की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की तायीद। धरानी पोर्टल के तहत खानदान और जायदाद की तफसीलात हासिल करने वाले वॉलंटियर्स की कारकर्दगी पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने असम्बली में उठाए सवाल। BC तबके को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने GHMC तरमीमी बिल का किया खैर मकदम। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मफलूज, कई ज़खायर आब लबरेज।
साइबर क्राइम साइबर पुलिस ने पेटीएम और केवाईसी के तहत धोखाधड़ी में मुलविस रैकेट को किया बेनकाब, 5 अफराद को किया गया गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।